A very pleasant morning to all the dear students of class 8. I am Purnima Tomar, your mathematics teacher. Again welcomes you on my YouTube channel KVS Mathematics. So today in this video we will just start with the chapter number 4, practical geometry, and we will complete it in this video only. Okay, so this is your one video for this chapter. So basically in this chapter we are going to discuss the construction of quadrilaterals. Okay, in earlier standard, in 7th standard, you have known the constructions of triangles. So when you have means three-sided फिगर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में किया था. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स व्हेन सम ऑफ द साइड्स और सम ऑफ द एंगल्स आर गिवन. ओके, सो बेसिकली देयर आर 5 categories that we are going to discuss, and these categories are as follows. So we will construct quadrilaterals in this chapter. The construction of quadrilateral will be discussed, and it is basically divided into 5 categories. Okay, the 5 categories are, first is when four sides and one diagonal are given. ठीक है, मतलब आपको quadrilateral की 4 sides given है. You know that quadrilateral means 4-sided figure है ना. So quadrilateral की 4 side given है और एक diagonal given है, one diagonal given है. Second condition is when 2 diagonals and 3 sides are given. तो जब 2 diagonals given होंगे और 3 sides given होगी तब हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. सेकंड केस. द थर्ड केस इज व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन. 2 एडजेसेंट साइड मींस, जो एडजेसेंट मींस बराबर वाली साइड मींस जैसे ABCD है आपका क्वाड्रिलेटरल है तो AB के बराबर साइड होगी आपकी BC. So that is adjacent side. 2 adjacent side and 3 angles. Any 3 angles are given. Okay. थर्ड केस वो डिस्कस करेंगे. फोर्थ केस व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन. तो 3 साइड्स गिवन है और 3 साइड्स के बीच में इंक्लूडेड 2 एंगल्स गिवन है. द फिफ्थ केस इज व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नॉन. स्पेशल प्रॉपर्टीज आर ऑफ स्पेशल पैरेललोग्राम्स, दैट इज यू नो दैट इज स्क्वायर एंड रोम्बस. ओके, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल. तो फिफ्थ केस में हम उनका कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे. सो आई एम टेकिंग one by one each and every case I am taking, and with an example directly from the exercise. Means you can see that exercise 4.1 is based on this case, 4.2 is on this case, 4.3 on this case, 4.4 on the fourth case, and the 4.5 exercise is based on the fifth case. Okay, so I am directly taking exercise questions. So I will be solving 1 or 2 example for you, and other parts you will do yourself. So here you can see that the exercise 4.1. okay, construct the following quadrilaterals. So quadrilaterals ABCD, quadrilateral JUMP, quadrilateral parallelogram Moore, or the rhombus best. ठीक है, so these are your questions that you have to construct. So here the condition is that you are given 4 sides and 1 diagonal. So let us see question number 1, first part. Okay, 4 sides are given and a diagonal is given. So we will see. So here in the first part you can see that I have to construct quadrilateral ABCD. Okay, so I will draw a rough figure. जो मैंने आपको previous standard में भी आपको हमेशा समझाया है that before starting the question for practical geometry you must draw the rough figure, और उसका आपको line segments का naming वहाँ पर कर देना चाहिए, and the length that is given over there you should write that. So if I will just draw a quadrilateral like this, means मुझे सिर्फ ABCD एक quadrilateral को देखना है, ठीक है ना. So कैसे भी मैं ड्रॉ करूँ quadrilateral. AB 4.5 centimeter. Okay, BC is given your 5.5 centimeter, and your CD is given 4 centimeter. And you have this AD 6 centimeter. Okay, and diagonal AC, this diagonal AC is given 7 centimeter. Okay, so you are having a case of quadrilateral which is 4 sides and a diagonal is given. तो हम अब कंस्ट्रक्शन इसका कैसे करेंगे ये आपको देखना है. सो यू कैन सी द रफ फिगर ओवर हेयर. ओके, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जब मेरा ये क्वाड्रिलेटरल है ना तो मेरे पास 4 साइड्स हैं और एक डायगोनल है, तो मैं ये देख सकती हूँ कि ये जो आपका है ना एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी 3 साइड्स नोन है. ये वाला ट्राइंगल है आपका जिसकी आपको 3 साइड्स पता है, तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं. तो आप कैसे करेंगे ट्राइंगल को ड्रॉ, मतलब आप डायगोनल की हेल्प से. यही आपको देखना है कि जो मेरा ये डायगोनल गिवन है मैं इसको बेस बना लूँ, ठीक है, और फिर एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, फिर अनदर. सो फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा दैट यू विल ड्रॉ AC. जो आपका डायगोनल है उसको आपने स्ट्रेट लाइन सेगमेंट उसको आपने बेस बना लिया.
इवेंचुअली आपका पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल ही फॉर्म होगा, ठीक है। आपने ये बनाया 7 सेंटीमीटर ए सी, सो दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर सी। देन यू नो दैट दिस, अगर मुझे ये ए डी सी ट्राइंगल फॉर्म करना है तो दिस सी डी इज़ 4 सेंटीमीटर, ए डी इज़ 6 सेंटीमीटर। तो मैंने अपने स्केल से मेज़रमेंट ली दिस सी डी एंड आई टुक द मेज़रमेंट सी डी 4 सेंटीमीटर। तो सी पॉइंट से, क्योंकि मुझे सी डी बनाना है ना, तो सी पॉइंट पर मैंने कंपास पुट किया और आर्क मार्क की, ठीक है। उसके बाद आपका था ए डी 6 सेंटीमीटर, मैंने 6 सेंटीमीटर की मेज़रमेंट ली अपने स्केल से एंड देन क्योंकि मुझे ए डी 6 सेंटीमीटर बनानी है तो ए को मैं ए पर पॉइंट पुट करूँगी, ठीक है। एंड आई विल ड्रॉ दिस, ये आर्क मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो लाइंस को, ये पॉइंट को, पेंसिल शुड बी शार्प, ओके, पॉइंट शुड बी क्लियर, फिगर शुड बी नीट एंड क्लीन। ये सब आपको बेसिक चीज़ें पता है while doing questions for practical geometry. So this is your D point that you have made. Likewise you have this BC 5.5 centimeter, ठीक है। तो BC 5.5 सेंटीमीटर, इट मीन्स C पॉइंट से आपको आर्क ड्रॉ करना है। 5.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट आपने अपने कंपास में लिया, देन C पर पॉइंट पुट किया एंड देन यू ड्रॉ द आर्क बिकॉज यू वांट टू मेक दिस पॉइंट B, ठीक है। आपका ट्राइंगल ए डी सी कम्प्लीट हो चुका है, अब आपको ये नीचे वाला ट्राइंगल बनाना है और दिस ए बी इज़ 4.5 सेंटीमीटर। यू टुक 4.5 इन योर कंपास and put the point at A, okay, and draw the arc. Then this point intersection is joined this and this. So this is basically your B point and this is your quadrilateral A, B, C, D, where this AC is diagonal. Then you will write the measurement of each and every side. You know that AD is 6 centimeters, this is your 4 centimeter, this is your 5.5 centimeter and this is your 4.5 centimeter. So it is very necessary that your pencil should be sharpened and your geometry box should be in good condition, okay, and you will draw the figure neat and clean and then you will mark the figure and then you will write the measurement of each and every side. So this is your complete question that will give you, if this is 4 mark or 3 mark question, then you will get full marks. And also class 8 for the steps of construction, जिन क्वेश्चंस के डायग्राम मैंने अभी बनाए हैं इनके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ PDF, ओके। इन द फॉर्म ऑफ PDF आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, अदरवाइज यू नो दैट हाउ टू राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप वैसे ही सिमिलरली अदर क्वेश्चंस के कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज योर दिस, नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपका ये सॉल्व किया है मैंने। द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आई एम डिस्कसिंग। सो यू कैन सी दैट इन द सेकेंड पार्ट दे आर गिवन क्वाड्रिलेटरल जंप, ठीक है। JU, UM, MP, PJ और PU, ये आपको जब आप इसको जंप को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइक हेयर यू कैन सी दैट मैंने जंप ड्रॉ किया, एक क्वाड्रिलेटरल आपको जंप ड्रॉ करना है और मैंने रफ डायग्राम इसका बनाया। देन you can see from, please refer to your NCERT, okay, refer to your NCERT that JU is given 3.5 centimeter, UM is given your 4 centimeter, MP is given your 5 centimeter and then PJ is given your 4.5 centimeter and then you have PU as 6.5 centimeter. It means आप करने क्या वाले हैं, जैसे आपने ये वाला पार्ट किया है वैसे ही दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट, सिमिलरली वैसे ही आप ड्रॉ करेंगे। करना क्या है आपको, PU आपका डायगोनल है तो आप PU को बेस बनाएंगे, 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप P पॉइंट से आर्क ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर की, U पॉइंट से आर्क ड्रॉ करेंगे 3.5 सेंटीमीटर की, दिस ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, फिर ये ट्रायंगल भी फॉर्म हो जाएगा आपका। सिमिलरली ऐसे ही बिल्कुल ये होगा, ठीक है। यू विल डू बाय योर सेल्फ। नाउ talking about the third part is your parallelogram more, okay. So parallelogram means what? Parallelogram means opposite sides are parallel and equal, okay. So you can see that if I draw the rough diagram for more, MORE,
and it is given that OR is 6 centimeter, RE is 4.5 centimeter, and EO is your 7.5 centimeter. Okay, so you know that these things are given, but you know that they have said it a parallelogram. उन्होंने ये नहीं बोला कि ये quadrilateral है, ठीक है. अगर क्वाड्रिलेटरल बोलते तो हमें ये दोनों साइड की ज़रूरत पड़ती. उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि ये पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल. तो ये 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है 4.5 सेंटीमीटर. ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है 6 सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट एंड सेकेंड के पार्ट जैसा ही हो गया बिल्कुल, ठीक है. सो दिस इज़ योर थर्ड पार्ट एंड यू विल डू योर सेल्फ. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. आपको अगर फर्स्ट पार्ट का समझ में आ गया है तो सेकेंड थर्ड पार्ट every part will be solved by you. Okay, in case of doubt just let me know. So now the fourth part is you can see fourth part is rhombus best, ठीक है. So if I draw the rhombus, थोड़ा फिगर करेक्ट नहीं है थोड़ा सा, ठीक है. सो अगर आप रोम्बस ड्रॉ करेंगे, रोम्बस बेस्ट, सो BE is 4.5 centimeter given and ET is given 6 centimeters. So you know that it is a rhombus. Rhombus means all sides are equal. All sides are equal means this is 4.5, this is 4.5 centimeter, this is 4.5 centimeter and this is 4.5 centimeter and you are given a diagonal. So similarly फर्स्ट पार्ट के जैसा ही ये क्वेश्चन आपका फ्रेम हो गया. नो डिफरेंस इन द फर्स्ट पार्ट एंड इन द अदर 3 पार्ट्स. ओके, सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट व्हेन दिस इज द केस फर्स्ट व्हेन द 4 sides and a diagonal is known, then how you will construct a quadrilateral. Okay, now talking about second part, second concept. So second part is when 2 diagonals and 3 sides are given. Okay, so exercise 4.2 first part I am taking. Okay, so 2 diagonals are given and 3 sides are given. तो आप देखिए that I have this question. They are saying construct the following quadrilaterals. This is quadrilateral lift, this is quadrilateral gold and this is rhombus bend. Okay, so quadrilateral lift, in the quadrilateral lift we will see that LI, IF, TL, LF, IT are given. So let us make the diagram and you will refer to your book simultaneously. Okay, so first we will construct a rough diagram for this. So quadrilateral is lift, LIFT. Okay, then LI is 4 centimeter, IF is your 3 centimeter, TL is your 2.5 centimeter, LF, this diagonal is given, is your 4.5 centimeter, and then you are given IT, that is your 4 centimeter. ठीक है, तो ये वाला डायगोनल है और ये वाला डायगोनल है. ओके, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं ये वाले ट्रायंगल को कंसीडर करूं, इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए, तो आपके पास पता है दैट यू आर नोन LF 4.5 है, आपके पास 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये ट्रायंगल आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना. अगर इस वाले को कंसीडर करेंगे तो आपका 2.5 है ये वाली साइड, ये है, लेकिन आपके पास ये नहीं है ना, तो ये नहीं हो पाएगा. हाँ, अगर ये वाला कंसीडर करेंगे, दिस वन मीन्स 2.5 4 सेंटीमीटर एंड दिस 4 सेंटीमीटर, तब भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. तो किसी भी एक डायगोनल को मुझे मतलब बेस बनाना है और फिर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, उसके बाद दूसरे डायगोनल से मुझे कंप्लीट ड्रॉ करना है, कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है. सी, ओके, सो लेट अस सी. सो यू विल हैव, so we will make this triangle LFI. Okay, or you can make this TLI. ठीक है, so we are making TLI triangle. so इसमें आप देख सकते हैं this is your diagonal, so let us take it as base. this IT or TI can be taken as base. Okay, so you know that your IT is 4 centimeter, so I will draw this 4 centimeter and this is my I and this is my T. Okay, then this IT I have drawn. अब मुझे TL और LI
ये ड्रॉ करना है। तो आई विल टेक द मेजरमेंट इन माई कंपास ऑफ TL, ठीक है। T पॉइंट से L के लिए I will take 2.5 because you know that this TL is 2.5, तो मैंने यहाँ पर T and this is your 2.5 सेंटीमीटर पर मैंने आर्क ड्रॉ किया। देन यू हैव I से L, क्योंकि मैं L पॉइंट बना रही हूँ ना यहाँ पर इंटरसेक्शन, तो I से L आपका 4 सेंटीमीटर है। यू विल टेक द मेजरमेंट एज 4 सेंटीमीटर एंड देन I से आपने कंपास मार्क किया। ओके, सो दिस पॉइंट इज योर L and then you will join with the scale. ओके, सो ये आपका कंप्लीट हो गया। नाउ यू कैन सी दैट L से आपका देखो L पॉइंट से आपका L से F आपको ये पता है 4.5 सेंटीमीटर जो आपका रिमेनिंग है, और आपको पता है I से F जो आपका भी बचा है आपने बनाया नहीं वो 3 सेंटीमीटर है। तो आपने I से हेयर फ्रॉम I टू मार्क द पॉइंट F, द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, तो आपने I पॉइंट से 3 सेंटीमीटर का आपने मेजरमेंट लिया, ठीक, आर्क ड्रॉ किया। IF बनाना है ना आपको 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आप LF देख सकते हैं, LF इज़ योर 4.5 सेंटीमीटर, तो आपने ये मार्क ली फ्रॉम L और आपने ये F के लिए ड्रॉ किया। ओके, सो व्हाट यू हैव now, you have made this point and this is your IF, that is your 3 centimeter. Okay, this is your F point, this is your IF 3 centimeter and this is your LF 4.5 सेंटीमीटर जो आपने मार्क किया। तो ये सब कुछ आपको गिवन था, ये सब कुछ आपने बना लिया। देन these 2 point will be joined and you get your quadrilateral complete. Okay, then you can see that this IT you have 4 centimeter, LI you have 4 centimeter, this is your 3 centimeter that you have drawn, this is your 4.5 centimeter and this TL you have made as 2.5 centimeter. So this is your complete construction of this part 2, case 2 when 2 diagonals and 3 sides are given. Okay, तो 2 diagonals given है, तो आपने एक diagonal की हेल्प से और जो 2 sides थी उनकी, ये वाली 2 sides थी इनकी हेल्प से एक ट्रायंगल कंप्लीट किया। उसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट आपको मार्क करना था वो एक साइड से मार्क की, एक साइड से आर्क ड्रॉ की और एक इस diagonal से आर्क ड्रॉ की। सो सिंपल कॉन्सेप्ट, जस्ट watch the video carefully and understand it. Okay, now in the second part the quadrilateral gold is very simple, same फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। आपके पास 3 साइड्स गिवन है OL GL GD एंड 2 डायगोनल्स गिवन है OD LD. Okay, so you will draw this by yourself. Then you have third part, rhombus bend. Okay, so let us see the question number 1, third part of exercise 4.2. Also class 8, make sure that you will write down the question. जैसे मैंने इस पार्ट में लिखा है complete question, आपको complete question लिखना है in each and every exercise of this chapter. Okay, all the questions should be written. So rhombus bend की अगर बात करें तो let us make a rough diagram of this rhombus. Rhombus में all sides are equal है ना, BEND bend. You are given BN 5.6 centimeter and DE 6.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट आपके पास 2 डायगोनल गिवन है, 2 डायगोनल्स ऑफ दिस रोम्बस आर गिवन, तो आप कैसे इसको बनाएंगे। ओके, सो अगर आपके पास यहाँ पर डेसिमल्स में और सिंपल पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता तो आप थर्ड साइड फाइंड करके और उसके बाद बना सकते थे, ठीक है, फर्स्ट केस के जैसा ये हो जाता। समझ रहे हैं आप, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, मीन्स एट 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है सब, तो मैं यहाँ पर
5.6 और बाइसेक्ट करता है, मतलब 5.6 का हाफ 2.8 ये होता, और दिस इज 6.5 का हाफ ये होता। फिर यहाँ पर पाइथागोरस यूज़ करती मैं और ये वाली साइड फाइंड कर लेती। तो ये तब पॉसिबल ईजिली हो पाता जब आपके पास यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म हो पाता इस ट्राइंगल में, लेकिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पर फॉर्म नहीं हो पा रहा है इनका। सो वी विल नॉट टेक बाय द साइड, व्हाट वी विल डू, we will use the concept that diagonals are perpendicular to each other. Okay, these diagonals are perpendicular bisector, मतलब ये वाला BN और जो DE है ये perpendicular bisector है। इस concept का use हमें करना है। So let us take BN as the base और BN no, you can take ED as the base. Okay, 6.5 because 5.6 का हम division कर लेंगे। So take DE as base 6.5. So let us draw. So this is your DE base 6.5 centimeter, means one of the diagonal I have taken it as base, and I know that the other diagonal is perpendicular bisector of this diagonal. ठीक है, दूसरा diagonal जो है ना आपका वो इस diagonal का perpendicular bisector है। perpendicular bisector मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और 90 डिग्री एंगल पर। तो मैं क्या करूँगी, इस DE जो मेरा ये diagonal है इसका perpendicular bisector ड्रॉ कर लेती हूँ। तो मुझे पता है perpendicular bisector ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होता है, मोर देन हाफ आप डिस्टेंस लेंगे अपने कंपास में, मोर देन हाफ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट आपने डिस्टेंस लिया, एक आर्क इधर ड्रॉ की, एक आर्क बॉटम में बिलो द फिगर ड्रॉ की, उसके बाद आपने बिलो द लाइन ड्रॉ की, उसके बाद आपने डी पॉइंट से आर्क ड्रॉ की एंड द अदर आर्क हेयर टू इंटरसेक्ट। ओके, सो ये 2 पॉइंट आपको मिल गए, देन यू विल जॉइन दीज 2 पॉइंट्स। Okay, these 2 points are joined and you will get the perpendicular bisector of this. It means this is your 6.5 centimeter और आपका perpendicular bisector मिल गया आपको, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री पर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका अब DE आपका जो 6.5 सेंटीमीटर था। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि दूसरा डायगोनल आपका BN यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर है, सॉरी 5.6 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर ये हाफ ऑफ दिस इज़ 2.8। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं इनका इंटरसेक्शन ही किया है ना मैंने, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने 2.8 मेज़रमेंट आपको अपने स्केल से लेनी है। उसके बाद इस इंटरसेक्शन से यहाँ पर आर्क ड्रॉ करनी है, इवेंचुअली ये सेम जगह पर आ रही है और इस पे यहाँ ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है कि ये आर्क आपका सेम इसी पॉइंट पर आएगा, ये कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है कि सेम पॉइंट पर आ रही है। ठीक है, सो नाउ दिस इज़ योर व्हाट यू हैव डन, दिस इज़ योर 2.8 सेंटीमीटर का आपने आर्क मार्क की है यहाँ पर, और 2.8 सेंटीमीटर की आर्क मार्क की है यहाँ पर, मतलब बेसिकली ये पूरा आपका है कितना, दिस इज़ योर 5.6 सेंटीमीटर diagonal, and so for this you have made the 2 diagonals, and by the concept that the 2 diagonals bisect each other at 90 degree, अब आप इन साइड्स को ज्वाइन कर दीजिए, पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे जब आप, क्योंकि ये 2 diagonals हैं रोम्बस के। ठीक है, then you will get your rhombus. Okay, so this is basically your rhombus and this is your B, E and D. This is your rhombus. Okay, तो हमने क्या किया, मेरे पास 2 डायगोनल्स थे, साइड रोम्बस का मैंने आपको बताया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हम निकाल सकते थे और हम 4.5 एक्सरसाइज में वो निकालेंगे भी। सो 2 डायगोनल्स को में से एक डायगोनल को आपने बेस लिया, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, और उसके बाद जो दूसरा डायगोनल था 5.6 का हाफ किया आपने, 2.8 इधर पॉइंट रखा यहाँ पर इंटरसेक्शन पर, ओ मार्क कर सकते हैं इसको, और आर्क ड्रॉ किया, फिर वैसे ही यहाँ पर आर्क ड्रॉ किया। ओके, रिपीट द वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो दिस इज अबाउट योर एक्सरसाइज 4.2. द अदर पार्ट you will be completing yourself. Now talking about third case. So the third one is when two adjacent sides and 3 angles are known. Okay, तो उस केस में हम क्या करेंगे? Let us see the example of exercise 4.3. Means question from the exercise 4.3. So in this part, when 2 adjacent sides and 3 angles are known in your exercise 4.3. Okay, so on this the exercise 4.3 is based,
and here when you know that 2 adjacent side and 3 angles, ओके तो जब आपको 2 एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल्स पता है ना क्लास 8, तो आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वो ध्यान से सुनिए। आपके पास 2 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, तो आपको एक साइड को बेस लेना है। जिस साइड को आपने बेस लिया है उसके दोनों वर्टेक्स पर एंगल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि 2 एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड को मैं बेस लूँगी और उस बेस पर ही 2 एंगल्स ड्रॉ करूँगी और फिर थर्ड एंगल ड्रॉ करूँगी और जो मेरी दूसरी साइड है, सेकंड साइड, वो ड्रॉ करूँगी। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप खुद ट्राई करेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैं एक्सप्लेन करूँगी। उसमें आपको कॉन्सेप्ट यही रखना है कि मुझे एक साइड चाहिए और उस बेस पर, जो मैं बेस लूँगी साइड, उस पर मुझे 2 एंगल्स चाहिए। अगर एंगल गिवन नहीं है तो मैं उन एंगल्स को फाइंड करूँगी, लेकिन मुझे उस बेस के साथ ही 2 एंगल्स चाहिए, ठीक है। ये मेरा टारगेट होना चाहिए। अदर पार्ट्स विल बी सॉल्व्ड बाय दिस टारगेट ओनली। सो फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, सो क्वाड्रिलेटरल मोर and MO is given, OR is given, then angle M, angle O, angle R is given, okay, and all the angles will be made by the compass, okay, that is 60 degree, 105 degree you will be making with the help of compass. You have understood that in your earlier standard also. So refer to your book. I am making the rough diagram for this quadrilateral more, and like if we have quadrilateral MORE more and MO is 6 centimeter, OR is 4.5 centimeter, this is your O105। बेसिकली ये ऐसे नहीं होगा, थोड़ा इधर होगा लाइन, ठीक है। इट इज़ रफ डायग्राम, सो डोंट टेक इट अदरवाइज। दिस इज़ योर 105। ये भी एक्यूट नहीं है ना एंगल, ये ऑब्ट्यूज है, ठीक है। So R is 105, this O is 105 degree and this M is your 60 degree, okay। So 3 angles and 2 sides are given। तो मेरा टारगेट, मैंने आपको बताया था कि मेरा टारगेट ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास एक बेस हो और उसके इस वर्टेक्स पर भी एंगल बना हो और इस वर्टेक्स पर भी एंगल बना हो। मतलब इस वर्टेक्स, ये वाला एंगल नोन हो और ये बेस नोन हो। तो ये मेरा टारगेट था, तो यहाँ पर वो फुलफिल हो रहा है। तो आई विल मेक द बेस MO as 6 सेंटीमीटर, so this MO is made your 6 centimeter, okay। now you have to make the angle 60 degree and then angle 105 degree। so you know that 60 degree तो आप बना लेंगे, then 105 degree you know that 90 plus 15 degree है ना, 105 degree होगा आपका। so for making here 60 degree you will make this semicircle and then you will put an arc here, okay, you know that this process। then from this point an arc here, so you know that it means that you have divided this 180 degree into 3 equal parts। this is your 60 degree, this is your 60 degree, this is your 60 degree, ठीक है। so this is this। now draw this $60 degree, ठीक है। this is drawn 60 degree। then from this point you have to make 105 degree। it means 90 plus 15। it means when you draw this semicircle, okay, then you put the arc, this you draw on 60 degree, then this is your 120 degree है ना, this is okay। so 90 degree बनाने के लिए you know that this is your 60, this is your 60। इसका आप हाफ करेंगे एंगल का, इस पोर्शन का आप हाफ करेंगे, दिस पोर्शन बिटवीन दीज 2 आर्क, तो आपको 30 डिग्री मिलेगा, है ना। इसका हाफ करने के लिए you just open up the compass a little and then from this point you will put an arc like this, from this point you will put an arc like this। it means that you are doing half of this angle, ठीक है। तो आपने ये 90 डिग्री आपने बेसिकली ये फॉर्म किया, इसका हाफ किया, लेकिन मुझे क्या करना है कि ये आपका 90 डिग्री है, उसके बाद ये आपने 60 डिग्री था ना कंप्लीट,
ठीक, ध्यान देना क्लास 8, ये आपका 60 डिग्री कंप्लीट था, तो ये आपने डिवाइड कर दिया, इस 60 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये आपका 30 डिग्री आ गया, और ये वाला जो पोर्शन इधर वाला है ना, इस डॉट तक, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री आ गया है ना। लेकिन मुझे 15 डिग्री चाहिए ना, इट मीन्स ये जो ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, जो मैंने रेड पेन से मार्क किया है, आप ऐसे मार्किंग नहीं करेंगे, समझाने के लिए है। जो ये रेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे 15 डिग्री चाहिए, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए वैसे ही किया मैंने कि इस पॉइंट से आर्क ड्रॉ की, ठीक, फिर इस वाले पॉइंट से आर्क ड्रॉ की, जिसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है उसी के 2 एंड पॉइंट से आर्क ड्रॉ करनी है आपको, और ये आपको पॉइंट मिल गया यहाँ पर एक बहुत ही हल्का सा इधर पॉइंट, ठीक है, ये आपको पॉइंट मिला। आप इसको ड्रॉ करेंगे अब O से, ठीक है, ये आपका है 105 डिग्री, इट मीन्स ये आपका 90 था प्लस ये आपने 15 यहाँ से लिया, तो ये वाला कंप्लीट जो अब मैंने रेड ड्रॉ किया है, ये पोर्शन, ये आपका बन गया 105 डिग्री एंगल, ठीक है। ये आपने 60 डिग्री बनाया था, और ये आपकी साइड थी 6 सेंटीमीटर, ओके। सो आपने 2, यही मेरा टारगेट, मेरा मेन पर्पस यही मुझे ध्यान रखना है कि मुझे एक बेस लेना है, उसके 2 एंगल्स बनाने हैं, जब मुझे 3 एंगल्स और 2 साइड गिवन है, तो ये मुझे करना है, ठीक है। टू बेस पर, बेस के वर्टेक्स पर 2 एंगल्स आपने बना दिए, बेस बना दिया। अब आप देखिए कि ये आपका OR जो है ये 4.5 सेंटीमीटर है, तो सिंपली मुझे अपने कंपास से 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है, ओके। ऊपर पुट करना है पॉइंट एंड देन पुट एन आर्क एट द डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपकी 4.5 सेंटीमीटर पर आर्क हो गई, ठीक। अब 4.5 सेंटीमीटर यहाँ तक है, अब आपको इस पॉइंट पर 105 डिग्री बनाना है, ठीक है। ये वाला एंगल भी तो बनाना है 105 डिग्री, तो आपने दोबारा से यहाँ पर सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जो आपने O वर्टेक्स पर किया है, कि आपने क्लास 8 जैसे 105 डिग्री आपने यहाँ पर ड्रॉ किया था, है ना, 60 डिग्री बनाया, फिर इसका हाफ किया 30 डिग्री, 90 डिग्री को डॉटेड लाइन से दिखाया, उसके बाद ये वाला जो 30 था इसका हाफ किया तो 15 डिग्री मिला। सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट करेंगे आप, और ये आपको ये वाला एंगल आपको मिलेगा, दिस एंगल इज योर 105 डिग्री, ठीक है। ये आर्क्स जो हैं ये बिल्कुल क्लियर रहेंगी आपको, अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे और मेरी बात को सुनेंगे और फॉलो करेंगे तो, ठीक है। तो ये आपका 105 डिग्री आपने इधर बनाया, वैसे ही सेम प्रोसेस 105 डिग्री बनाया, और ये आप 4.5 सेंटीमीटर पर आर्क ड्रॉ कर चुके थे पहले, क्योंकि आपको इस पॉइंट तक आपका 4.5 सेंटीमीटर है, जो कि आपका पॉइंट है R, दिस पॉइंट इज योर R, ओके। एंड नाउ यू विल जस्ट एक्सटेंड दिस लाइन that is at your 60 डिग्री, तो आपका ये पॉइंट हो गया E point, and this is your quadrilateral MORE, more, okay. So what is the basic behind this, that you draw this base, draw 2 angles at the vertex of the base, okay, M पर O पर, and then put your arc 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर तक आपने ये पॉइंट लिया, फिर इस पॉइंट पर आपको 105 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, ओके। नाउ डिस्कसिंग द एक्सरसाइज 4.3 के सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में डिस्कस कर रही हूँ, आप खुद कंप्लीट करेंगे उनको। So let us discuss the other parts one by one. The second part is your quadrilateral plan, okay, PLAN. So please refer to your book for the measurement. Here I am drawing the rough figure. So if we talk about the quadrilateral plan, what I have, let us make this quadrilateral, and I mark it as PLAN, plan. So it is given that PL is your 4 centimeter, okay. LA is given your 6.5 centimeter. It means 2 sides are given, okay. Then they are saying that angle P is 90 degree, so this is your 90 degree, okay. Then angle A is your 110 degree, this is your 110 degree. So C class 8, I have made this 110 degree here acute, okay. It will not be acute, it will be like this, है ना। तो ये रफ डायग्राम है इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से बनाया, अदरवाइज it will be like this, okay. So please consider it as rough only. So this is your PLAN, okay. So
angle A is your 110 degree, then angle N is given 85 degree, this N is given 85 degree. ठीक है, सो ये आपका सेकेंड पार्ट है एक्सरसाइज 4.3 से. सो हेयर यू कैन सी क्लास 8 दैट मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, मेरे पास PL है, AL भी है, ठीक है, ए एंगल P वर्टेक्स पर एंगल है मेरे पास, लेकिन मेरे पास दूसरे एंगल्स कहाँ है 85 और 110 डिग्री, लेकिन मेरे पास ये वाली साइड भी नोन नहीं है, ये वाली साइड भी नोन नहीं है, ठीक है, तो मैं नहीं ले सकती. मुझे क्या चाहिए, मुझे एंगल L चाहिए. माई टारगेट इज एंगल L. ओके, माई टारगेट इज एंगल L. तो मुझे एंगल L फाइंड करना है. सो आई नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. तो 360 डिग्री में से मैं माइनस करूंगी समेशन ऑफ 85 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री. दिस इज योर एंगल L. सो एंगल L इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 285 डिग्री. This is your 75 degree. So like this, first you will find angle L, that is your 75 degree. After that, now आपको 90 डिग्री बनाना है, 75 डिग्री बनाना है, 60 प्लस 15, 60 डिग्री प्लस 15 से आप कंपास से 75 डिग्री बनाएंगे. ओके, देन यू विल ड्रॉ द आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर एंड देन यू विल कंस्ट्रक्ट 110 डिग्री. ओके, सो ये आपका बिल्कुल क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट के जैसा बन गया, बस आपको इसमें ये एक्स्ट्रा करना था. ठीक है, तभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि आपको एक बेस चाहिए और उसके वर्टेक्स पर एंगल चाहिए, अगर नहीं है तो फाइंड करिए. ठीक है, दिस इज योर सेकेंड पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट इज योर parallelogram here. Okay, so let us see this parallelogram. In the third part it is given as that this is parallelogram. Okay, parallelogram here, and HE is given 6 centimeter, EA is given HE is given 5 centimeter, EA is given as 6 centimeter, and angle R is given 85. Okay, 85 degree. So you can see दैट दिस इज़ अ पैरेललोग्राम. और आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल. आपके पास 2 साइड्स हैं और एक ही एंगल गिवन है, तो आपको पता है क्योंकि आपके पास एक एंगल गिवन है पैरेललोग्राम का, लेकिन अदर एंगल्स भी यू कैन फाइंड इजली. लाइक हेयर दिस इज अपोजिट एंगल, सो दिस विल बी योर 85 डिग्री. सो फर्स्ट यू विल राइट दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम, देन यू विल राइट एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल E इज इक्वल्स टू 85 डिग्री. ओके, एंड रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, उसके बाद आपकी बिकॉज HE इज पैरेलल टू RA. ओके, सो यू हैव 85 डिग्री प्लस दिस एंगल H इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इट मीन्स एंगल H प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स है ना, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइन्स. सो यू विल हैव एंगल H इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, दैट इज योर 95 डिग्री. ओके, सो दिस इज योर एंगल H दैट इज 95 डिग्री. आपने ये फाइंड कर लिया और उसके बाद आपको पता है कि एंगल A इज ऑल्सो 95 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल. लेकिन हमारा टारगेट क्या था, हमें क्या चाहिए था, ये चाहिए था, ये चाहिए था और एक ये वाला चाहिए था. ठीक है, सो ये क्वेश्चन वैसा ही बन जाएगा बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की जैसा, एंड देन यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ, यू विल ड्रॉ द फिगर. देन द फोर्थ पार्ट इज So the fourth part is your rectangle OK. You have to draw rectangle. So this is the rectangle OKAY, and OK is 7 centimeter, KA is 5 centimeter. Okay, and then you know that it is a rectangle. तो सभी angles आपके 90 डिग्री होंगे. This is 90 degree you will make by compass. This is 90 degree. Then this is 90 degree will be made, and this is just the same as the first part that I have solved. Okay, so the other 3 parts will become gradually similar to the first part after doing this small calculations that I have explained here. Now moving to the fourth concept, that is when 3 sides and 2 included angles are given. Okay, यहाँ पर आपकी 2 sides थी and 3 angles थे. अब आपके पास 3 sides हैं और 2 included angles given है. included angle अगर नहीं given होंगे तो हम included angle find करेंगे. So let us see the fourth concept. So this is your exercise 4.4, and that concept that 3 sides, these 3 sides and 2 included angles are given. Okay, so in the exercise 4.4 they are having 2 parts. First one part I am solving for you, the other part you will do yourself. So let us see the construction of quadrilateral DR where these measurements are given.
So let us make a rough figure first. So I have the quadrilateral DEAR. DE is given 4 centimeter, EA is given 5 centimeter, then your AR is given 4.5 centimeter, and E is given your 60 degree, and D is given your, A is given your 90 degree. Okay, so 2 included angle and the 3 sides are given. So how we will do this? क्लास 8 ये आपका बिल्कुल प्रीवियस कॉन्सेप्ट की तरह ही है. आपको करना क्या है, दैट हेयर यू कैन सी दैट मेरे पास ये बेस है और इसके 2 वर्टेक्स पर एंगल गिवन है. ठीक है, तो मैं वैसे ही करने वाली हूँ जैसे मैंने अभी थर्ड पोर्शन में किया 4.2.3 में, जहाँ मैंने किया दैट व्हाट यू हैव दिस बेस AE और यहाँ पर 2 एंगल्स हैं. तो आपने बेस AE ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर. ओके, और जैसे वहाँ पर मुझे वर्टेक्स पर 2 एंगल्स चाहिए थे एंड ड्रॉ करने थे, वैसे ही मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी. लाइक एट द वर्टेक्स E देयर इज एंगल 60 डिग्री. सो विद द कंपास angles will be drawn with the help of compass only. You have this, then you draw this arc, and this is done your 60 degree. Okay, so you can just join the points. This is done 60 degree. Then you have to draw 90 degree at A, so you will draw the semicircle. Okay, then you will draw this 60 degree, then again this. देन आपको इस एंगल का बाइसेक्शन करना है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. यू विल ड्रॉ दिस. ओके, देन जॉइनिंग दिस पॉइंट will get you 90 degree. Okay, then what you are left with, you have drawn AE 5 centimeter, then you have AR as 4.5 centimeter. जहाँ पर आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया है वो आपका AR 4.5 सेंटीमीटर है. सो जस्ट टेक द 4.5 centimeter in your compass and put an arc here. एंड दिस DE, ये E जो है आपका 60 डिग्री एंगल, और उसके बाद जो D है आपका, दिस इज़ योर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर. सो जस्ट एट E पुट द पॉइंट E एंड दिस आर्क इज़ योर 4 सेंटीमीटर. तो आपकी ये पॉइंट और ये पॉइंट 2 पॉइंट्स हो गए, इनको आपने ज्वाइन कर देना है. यू विल गेट दिस इज़ योर DEAR. This DE is 4 centimeter you have drawn, and this is your 4.5 centimeter. This is your 90 degree. This is your 60 degree. Okay, so this is your quadrilateral. The second part you will try by like this yourself. Okay, so the concept is that base or base के vertex पर 2 angles. Now moving towards the third portion, last portion, that is some special cases. So exercise 4.5. So class, in this exercise 4.5, the 4 questions are given, and these questions are something the revision of previous exercises, means up to 4.4 we have done this concept and we have completed. Like here you can see that the first question is the draw the following. The square reed with RE is equals to 5.1 centimeter. Okay, so a square is, you know that a square is a special parallelogram. You know that each side is equal, each angle is of 90 degree. So basically you are having all the angles as 90 degree and all the sides 5.1 centimeter. So you can use any of the previously learned, means in this video that you have learned the method to draw the quadrilateral and can draw the square. Okay, next is your a rhombus whose diagonals are 5.2 centimeter and 6.4 centimeter long. So diagonal rhombus मैंने अभी आपको इसी वीडियो में ड्रॉ किया था, you can refer to that. तो आप the concept that is used is that diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other, है ना, अभी हमने किया. You will do like that.
Question number 3 में a rectangle with adjacent sides of length 4 cm and 5 cm. So you know that adjacent sides are what? Rectangle भी आपका एक स्पेशल पैरेललोग्राम है और इसमें 90 डिग्री एंगल्स हैं सभी. Adjacent side means 5 cm की ये वाली साइड है और 4 cm की ये साइड है आपके पास. So the concept that 3 angles and 2 sides are given, उस कॉन्सेप्ट से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. Rectangle you will draw yourself. Okay. Question number 4 is your a parallelogram OK where OK is equals to 4.5 cm and KA is equals to 4.2 centimeter. So is it unique? So here what you do, you are given the you know that opposite sides are parallel and equal. मतलब sides तो आपके पास हैं. OK है 4.5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर और KA है 4.2 सेंटीमीटर. एंगल नहीं है. अ सुटेबल एंगल यू विल टेक एंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. उस कॉन्सेप्ट से आप इसको ड्रॉ करेंगे, ट्राई करेंगे. ओके. इन केस ऑफ डाउट जस्ट लेट मी नो इन द ग्रुप. सो दिस इज ऑल फॉर द practical geometry video. Okay, so class 8, complete this video, understand the concept, complete your all exercises, and this is all about this chapter, practical geometry. So thank you class for watching the videos, and please be regular and be regular in your classes and doing your work. So and stay happy and stay safe at home.